गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी. सो वेलकम बैक टू द चैनल. तो आज हम आई हैव एन आइडिया ऑफ डूइंग 100 MCQ सीरीज. तो विल डू आवर डे विद 100, मतलब विद 20 questions, like one day 20 questions, and approximately 5 days we'll complete the 100 MCQs. Okay, these are the repeated or most asked questions, MCQs. So let's start. So it's 3-1 of your 100 MCQs. Yes. Resistance ability against fatigue is called. तो ये एक kind of you can say definition ही है इनमें से किसी एक element की. Ability to resist fatigue is your endurance. Cool? Okay. There are two types of endurance: muscular and cardiovascular. Great. And if I say about rest of the things like strength, ability, agility and speed, so strength is your ability to overcome resistance. Agility होती है, the agility मतलब है the ability to change directions quickly and effectively. Speed होती है the ability to perform movements in the shortest possible time. तो I hope आपको short definition पता चल गई होंगी. So this is the definition of your endurance. Next, the complete number of competition in knockout competitions of 34 groups are. तो इसमें बेसिकली जो इसमें ये पूछना चाह रहा है that is your number of matches पूछना चाहता है वो. तो what's that formula for? तो n is equals to your 34. Formula is n minus 1, that is 34 minus 1, 33. 33. So yeah, 33 matches. Biomechanics helps in completing the statement, or you could say the definition. So biomechanics is all of the above. वो एथलीट की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती है, इंजरीज को ट्रीट करने में हेल्प करती है, एंड फ्रिक्शन एथलीट और ग्राउंड सरफेस को इंक्रीज करती है. इट्स ऑल ऑफ द अबव. ट्रेन टीचर्स स्पेशली टू वर्क विद CWSN. अब ये तो जी मोस्ट ऑफ द बच्चे जो करेंगे वो ये वाला करेंगे, बट इट्स नॉट. माना फिजिकल एजुकेशन के थ्रू तुम CWSN वाले टॉपिक पढ़ रहे हो, बट ट्रीटिंग दिस काइंड ऑफ पीपल, उन ट्रेन टीचर्स को हम स्पेशल एजुकेटर कहते हैं. ओके. नाउ ट्रेनिंग सेशंस इज अ पार्ट ऑफ. ट्रेनिंग सेशन किस चीज का पार्ट होता है? तो प्लानिंग का भी एंड पिक्चर का भी. सो इट्स बोथ A and C. Choose the odd one out. So I could say these are the personality traits. इनमें से odd one out करना है. So if you remember the big 5 theory, जिसके अंदर आपको याद हो मैंने आपको ओशन पढ़ाया था, राइट? तो उसके हिसाब से your extroversion, neuroticism and openness are 3 of the 5 core dimensions used to describe the human personality in this model. An ambivert is odd one out because ये एक categorical label है, किसी person को दिया जाता है जो middle of introversion extroversion के spectrum में आता है, rather than being a primary trait dimension. ये इसमें primary trait dimensions बताई गई हैं. ये ambivert, तुम्हारा ambivert, extroversion, introversion, that are your not primary states. Okay, so yeah, this one. बाकी इस ocean का, let me just get you back to the topic. Ocean में O is your openness, C is your conscious typeness, E is your extroversion,
A is your agreeableness and N is your neurotism. I'll write out this का spelling. कभी आप बेहोश वाला समझो, कॉन्शियस हो रहा है. Yeah, think of it. Okay, this is the spelling for your C concluding in your ocean. Next, cracking and breakage of bones is called as simple है. अब देखो sprain and strain आपका soft tissue injury होता है. Fine. And ये आपके tissue को damage करता है. More often your ligaments and tendons. Your ligaments and tendons. और स्किन मतलब टिश्यू में ही आ गया स्किन तो राइट. एक अब ये ऑप्शन ऑफ कोर्स एलिमिनेट हो ही गया. फ्रैक्चर इज योर दिस एंड ऑल्सो एन हार्ट टिश्यू इंजरी. ये तो आपको ये पढ़ के ही समझ जाना चाहिए कि ये हार्ट टिश्यू इंजरी के अंडर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे. ओके, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन आर हार्ट टिश्यू इंजरीज वेयर बोन्स आर अफेक्टेड. अनकंफर्टेबल शू मे लेड टू. अगर आप अनकंफर्टेबल शूज पहनते हो तो उससे आपको क्या हो सकता है. आई नो देयर मस्ट बी अ कंफ्यूजन बिटवीन योर फ्लैट फुट एंड नॉक नीज, राइट. सो इट्स फ्लैट फुट. आई विल से यू वाई बिकॉज ये क्वेश्चन कहीं पे रिपीट हुआ है किसी सेट में आई गेस और समथिंग. तो वहाँ पे द आंसर की मेंशन इज नॉक नी वाला को सही मतलब नॉक नी को सही बताया था. बट द एग्जामिनर गेव यू मार्क्स फॉर बोथ अगर तुमने करा हुआ था इनमें से एक, क्योंकि द मेन लॉजिक फॉर करेक्ट आंसर इज फ्लैट फुट. एज ये अगर एक इंसान है तो या तो हेड टू टो चलते हैं या टो टू हेड चलते हैं. तो मतलब बीमारियों के हिसाब से बता रही हूँ. अगर वो आपसे स्पाइन रिलेटेड कुछ बीमारी पूछता तो आप ऊपर से शुरू होते पहली जो बीमारी पड़ती. ठीक, अब उसने नीचे से पूछा है तो सबसे पहले ही इट्स अबाउट योर फुट, देन घुटने, देन योर टांग, देन योर पेल्विक रीजन, देन योर थोड़ा मतलब स्पाइन एरिया, देन अपर लिम्ब, ये सब में आता. तो फर्स्ट आपका क्या पड़ा, दैट्स द फ्लैट फुट. तो फ्लैट फुट. ठीक, तो करेक्ट आंसर इज फ्लैट फुट. पॉलिसिस साइडवेज कर्वेचर होता है, या तो एस बन रहा होता है या सी बन रहा होता है स्पाइन में. लॉर्डोसिस आपका इनवर्ड कर्वेचर होता है. एंड नॉक नी वो होता है जब आपके घुटने ऐसे फॉर्मेशन में आ जाता है एंड बो लेग्स में ऐसे होते हैं. फ्लैट फुट क्या होता है जब आपका पैर का आर्च खत्म हो जाता है, राइट. नेक्स्ट, कॉशलर इम्प्लांटेशन लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन इन विच ओलंपिक. कॉशलर इम्प्लांटेशन. Okay, so your correct answer for this is Deaf Olympics. क्यों? Because to participate in a Deaf Olympics, athletes का जो hearing loss होता है तो उसमें मतलब एक बेटर आई जो ईयर जो कंसिडर करते हैं वो 55 dB कंसिडर करते हैं. ये कुछ यूनिट होती है, इस तक हो तो आप एलिजिबल होते हो. तो अगर हियरिंग एड्स या कॉशलर इम्प्लीमेंट्स, ये बेसिकली हियरिंग एड हियरिंग सब्सटेंस लगाते हैं, वो करते हो तो द थिंग इज वही वाली बात है कि अगर इसको ये बंदा है का ये नॉर्मल है, एक ये बंदा है ये एड्स लगा रहा है, इक्वल कंपटीशन नहीं होगा. बिकॉज एक स्पेशल के लिए हम स्पेशल नीड थोड़ी निकालेंगे ना, राइट. बराबर रखना है हमको. ठीक. Symptoms of food intolerance do not include food intolerance. इनमें से कौन सी चीज़ नहीं करती है. तो पहली बात, फूड इंटॉलरेंस वो चीज़ होती है जिस बंदे को कोई खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, खाना या कोई सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है. तो स्टमक एक सबसे पहला यही होता है प्राइमरी सिम्टम. देन इट्स योर नोजिया and then restlessness. Okay, binging is, I would say,
नॉट इंक्लूडेड इन दिस बिकॉज बिंजिंग एक बिहेवियर पैटर्न होता है जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनको, लाइक इट्स एन साइकोलॉजिकल सिम्टोमेटिक रिएक्शन टू अ फूड इंटॉलरेंस. ये इसका रिएक्शन होता है बट इन अ साइकोलॉजिकल वे, नॉट इन योर मतलब आई थ्रू देखने वाले सिम्टम्स में. इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन 21st June. Which of the following is not a committee of a sports event? इनमें से कौन सी आपकी स्पोर्ट्स इवेंट की कमिटी नहीं है? आई वुड से जस्ट रीड आउट द कमिटी नेम. कई बार ऊपर से पढ़ने पे लगता है कि हाँ ये तो थी बट एक बार पढ़ लो कि तुमने सही पढ़ा है नहीं पढ़ा है. ओके, सो इट्स अ स्टैंडिंग कमिटी. टू चेक एजिलिटी व्हाट टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड? एजिलिटी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? So it can be your I would say the correct answer, दो ये चीज़ आई नो आपने नहीं पढ़ी है बट इफ़ यू रिमेंबर और नॉट रिमेंबर अब याद कर लेना कि जो आपका 8 फुट अप एंड डाउन वाला जो टेस्ट है उसको पल्ट्रॉन फंक्शनल टेस्ट भी बोलते हैं. ओके, एनारोक्सिया नर्वोसोआ डू नॉट कॉज. सबसे पहली बात आपको इसमें तो यही जानने की कि एनारोक्सिया नर्वोसोआ होता ही क्या है पहली बात तो. सो योर इफ़ यू रिमेंबर जब फूड इंटॉलरेंस वाली चीज़ पढ़ा रही थी या फिर जहाँ पे ईटिंग डिसऑर्डर का पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एनारोक्सिया नर्वोसोआ इज़ एन कॉम्प्लेक्स ईटिंग डिसऑर्डर जो बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर से अफेक्ट हो सकती है. तो इससे क्या नहीं होता, ऑफकोर्स परफॉर्मेंस प्रेशर इन स्पोर्ट्स. ये हैं इसके फैक्टर्स, ये इसका फैक्टर नहीं है. फॉरमोस्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड्स मोटर डेवलपमेंट. अच्छा जी, अगर आपको ये याद हो, इट्स एन साइकिल ऑफ अ ह्यूमन हाउ इट डेवलप फ्रॉम एन स्मॉल टू अ बिग मैन. तो योर इन्फेंटहुड, इसको हम दूसरे टर्म से जानते हैं, दैट इज योर इन्फेंसी. कूल. आई राइट आउट इनका एज ग्रुप कितना होता है. ओके, इन्फेंसी इज योर बर्थ से 2 to 1. चाइल्डहुड आपका अप्रॉक्स होता है 2 to 11. Adolescence is your 12 to 18 and adulthood is post 18. Okay, मतलब 18 to 21 you could say, or 24 maybe to I would say 56 something. उसके बाद तो फिर आपका old age आ जाता है. Okay, I guess you're good with the question. Now let's move on to the next. At touchdown in walking, a knee is normally. At touchdown in walking, the knee is normally. ये एक आपको स्टेटमेंट दी है कि अगर हम ये चीज़ करते हैं, मान लो एक ही एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करी तो क्या होता है रिएक्शन उससे. तो इट्स स्लाइटली एक्सटेंडेड. इट्स इन साइकोलॉजी, इफ यू रिमेंबर काइनेमैटिक्स में पढ़ाया मैंने. Which game is considered the national game of India? I guess no doubt on this question. Okay. Okay, tell me out. ये और ये किसका national sports है? I'll tell you the answer in the end. First से पहले comment डाल देना आप. Next में नहीं, next video में बताऊंगी. Now, first ODI cricket World Cup was won by India in which year? Yeah, after this question, I would say something that थोड़ा अपना जनरल नॉलेज भी ठीक रखना. दो आपने लिया भी होगा जीएस देने के लिए सीयूटी में, तो बेसिक चीज़ जैसे ओडीआई कौन जीता या इंडिया क्या क्या जीत चुकी है वो याद रखना. इन स्पोर्ट्स के टर्म में बता रही हूँ, ठीक है. तो इट्स योर आंसर 1983. कैप्टन आपके कपिल देव थे. फाइनल में इंडिया डिफीटेड द 2-time डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज बाय 43 रन. ठीक है, इंडिया ने 183 रन बनाए थे.
और बाकी और क्या चीज़ जानने की है इसमें? ये लॉर्ड्स लंदन में हुआ था। हाँ बस इतना ही। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSO? समथिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही होगा ऑफ कोर्स। या इट्स डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। ओके, सो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस ये इसके अंदर काम करता है। ओके, नेक्स्ट, शुगर प्रोवाइड्स विच न्यूट्रिएंट? शुगर आपको इनमें से क्या चीज़ देती है? तो जी शुगर आपको कार्बोहाइड्रेट देती है। तो मतलब 3 टाइप के आई वुड से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्ब्स में, दैट इज योर सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर को हम कंसीडर करते हैं एज दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट द बॉडी कैन ब्रेक डाउन क्विक फॉर एन एनर्जी। ठीक, बाकी कुछ टाइप्स ऑफ शुगर्स होती है लाइक सुक्रोज, दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ शुगर जो कॉमन टेबल शुगर होती है वो। बाकी जैसे स्टार्च है वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है बिकॉज उसकी लॉन्ग चेन होती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक, बाकी फैट्स तो आपको पता ही है बॉडी को वार्म करने के लिए होता है। ठीक, so yeah, this was all about this video. I hope you understood some of the topics and the questions that have been repeating. I just put it out in an MCQ form and I hope आपको समझ आया होगा. In the next video we will have 21 से question start because we ended up here 20 and 5 days के around हम 100 MCQs अपने पूरे कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं अगर हमारे पास तब भी टाइम बचता है we'll do some more questions. So till the time, bye bye, see you, take care and prepare well. All the very best for your CUT 2026 exam and revise करते रहना topics को. Bye bye.